मुझे लगता है कि पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं। I was in Jamshedpur, which is run by the Tatars. So I always had this vision that if ever I entered a room, everybody should look at me. और मुझे जो भी पता था, मुझे इनके सिर्फ केस के बारे में पता था कि इनके साथ एक ज़्यादती हुई है, इन्हें अरेस्ट किया गया गलत केस में। तो एक मिनट के लिए भी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने कहा सर ये कहानी आपका बताने वाले थे, और मैंने लाइफ में कभी डायरेक्ट नहीं किया। हमारे लिए कनकिया प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास ऐसे सेलिब्रिटी हो जो इंस्पायर कर सके, और ये इंस्पिरेशन प्रोजेक्ट के साथ माधवन सर और रामदेव सर मिले, इससे बढ़ के खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। सर योर व्यूज आई सेकंड गिरीश का ओपिनियन। आई मीन जब हम रॉकेटरी की बात करते हैं और कोई डिसइंटेंशनल की बात करते हैं तो नाम्बी सर और माधवन सर के अलावा हमको कोई सूझा नहीं। हम लोग ने उनको बताया कि हम पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट जब भी हमने स्टार्ट किया तब से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम ये बनाएंगे और हम इनको बुलाएंगे, और आज का दिन ऐसा हमको मिला जहाँ पे हम लोग सब मिलके रॉकेट का इनॉग्रेशन कर सके। सर के हाथ में ये दोनों सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं और पूरे इंडिया और पूरे भारतवर्ष में लोग सभी किस्म की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, और अभी जितनी भी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं इससे बिल्कुल जाहिर है कि पैन इंडिया फिल्मों का टाइम आ गया है। All the people, what would you like to say? Very good evening to all of you. And namaskar. You know, when I look at Himanshu and all that they are trying with the concept of Silicon Valley and putting a rocket here, and like you said very correctly, it's all about manifesting your dreams and your desires to making it real. I was born and brought up in Bihar. My childhood was as wild as can be. I was a badmash. My parents were very tired of me because I was the kind of boy that other people's parents used to say, don't be friends with me. But I think anybody who's a rebel has a dream that not normal people have. I remember very clearly that when I was 6 years old or 7 years old, I was in Jamshedpur, which is run by the Tatars. So I always had this vision that if ever I entered a room, everybody should look at me. That was my only ambition. कि मैं कमरे में घुसूँ तो सबकी नज़र मेरी तरफ होनी चाहिए. And I think when you have that sort of a dream, then कायनात ऐसा काम करता है कि आपको उसी मुकाम पर ले जाता है. And I didn't try very hard for it, but I do know that what the Kanakyas have done, they've always been rebels. They've always had different visions. They were the first ones, in fact, to get into the mall and the cinema amalgamation in I think 2008, 1996 to 97. My apologies. So they were visionaries then, and then they made a huge business out of it, and then came out of it, and then getting into construction. So I always have faith in people who have lateral thinking, and they have done a brilliant job of that. For me, you keep saying I'm a humble person, and but you should see somebody like Nambi Narayan sir and all the other ISRO scientists. I wish I could explain in detail how fantastic this achievement of ISRO is, of sending Chandrayaan 3 and landing on the moon on the south pole, which is the dark side. It's actually landed on the side that आपको कभी नजर नहीं आएगा. चांद पे उस तरफ उसने लैंड करवाया है, और इसकी कई एडवांटेजेस हैं, बहुत मेरिट हैं. ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, ये हमारी देश के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हम संक्षेप में बताएं, उसका मतलब ये है कि हमारा खुद का गूगल मैप्स होगा, हमारा खुद का जियो स्टेशन है. हमें बाकी देशों से खरीदने की या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और मुझे लगता है कि अभी हम नंबी नारायण साहब से हम बात कर रहे थे. Same engine is used. I don't know if you know, but all the launches that have been successful, it's Nambi Narayan sir's engine, which was built that long ago. But somebody said Elon Musk, and he was saying in a few years Elon Musk will come to us for technology. That's how good we are going to be. Wow! Brilliant. So Pragyan is very happy up there. You talk to us about that. It's very strange that I went to meet him. और ये मेरे ख्याल से हमारे इंडियंस की परिभाषा है, ह्यूमिलिटी जो है, और ख़ास करके इसरो के साइंटिस्ट. क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, अगर आज कोई भी इसरो के साइंटिस्ट हाँ कह देना
तो उनको 10 गुने पैसे देकर दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसी वो लेके चले जाते हैं। पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भारतवर्ष के लिए काम करना चाहते हैं। और जब मैं पहली बार नंदी नारायण सर से मिला तो मुझे इनके बारे में, जैसे कि पिक्चर से पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, और मुझे जो भी पता था मुझे इनके सिर्फ केस के बारे में पता था कि इनके साथ एक ज़्यादती हुई है, इन्हें अरेस्ट किया गया गलत केस में और इन्हें अरेस्ट मतलब जेल में रखा गया और फिर उनको फ्री कर देगा। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी कहानी है अबाउट एन एस्ट्रो साइंटिस्ट वाज रॉन्गफुली अरेस्टेड। और जब मैं इनसे मिलने गया, हाँ, कमाल की बात यह है कि इन्होंने एक क्षण के लिए तो मुझे ये नहीं बताया कि इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, फीडबैक कहाँ। तो 1 मिनट के लिए भी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया। इनके बुक में इनके अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र नहीं है। इनके बुक में भी सिर्फ इस गलत केस के बारे में है। He only talked to me about the falsehood of the case and how wrong it was and how, most importantly, he was very upset that it put back India's space program by 20 years. That was his concern. तो मैं उस पर स्क्रिप्ट लिखकर उनसे गया मिलने के लिए। मुझे लगे 4-5 महीने उस पर स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब मैं इनसे स्क्रिप्ट लिखकर उनसे मिलने गया, उनकी अप्रूवल लेने गया, तो कह रहे दिल अच्छा लिखा आपने, केस के बारे में सही लिखा है, पर ये जो बात है ना ये गलत है, क्योंकि स्टेबिलिटी थ्योरम करने के लिए मैं तो प्रिंसटन में था। मैंने कहा सर आप प्रिंसटन कब गए? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहीं पे तो मैंने स्टेबिलिटी थ्योरम की, वहीं से तो मैं अपना लिक्विड फ्यूल इंजन बनाना सीखा। तो मैंने कहा लिक्विड फ्यूल इंजन आपने बनाया? कहता हाँ। और फिर धीरे धीरे उन्होंने फ्रांस के बारे में बात की, स्कॉटलैंड के बारे में बात की, फिर उन्होंने ये बताया कि मैंने विकास इंजन बनाया है। मैंने कहा सर ये कहानी आपका बताने वाले थे। इस फिल्म को मजबूरन मुझे डायरेक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे डायरेक्टर एंड वक्त पे डायरेक्ट नहीं कर पाए, और मैंने लाइफ में कभी डायरेक्ट नहीं किया। मैं हर फिल्म वाला हूँ यार। एक्ट पूछता था प्रोड्यूसर से कि भाई कौन सी कहानी है, कहाँ पे शूटिंग है, कितनी देर की शूटिंग है, हीरोइन कौन है, ऐसा बढ़िया चलो जाके शूटिंग करते हैं, पैसा लाओ जाता हूँ मैं। ये था मेरा इन्वॉल्वमेंट। और ऐसे ही मैंने फिल्में की, राइट अप टू 3 इडियट्स, तंदुरुस्त मनु, क्योंकि मुझे टेक्निकली कुछ पता नहीं था। मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जो पता था उसको मैं कर रहा था, पर जब मजबूरन मुझे ये एक्टिंग डायरेक्शन करनी पड़ी तो मैं बेसिकली आई वॉज वेरी फ्राइटेंड। पहली बार जिंदगी में लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। राइट, कहानी तो बतानी है, तय तो कर लिया, मेड अप माई माइंड, अब कूद चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है, फिर डायरेक्शन का टीच जो आता नहीं है तो क्या करने वाला है। एंड वेंट टू नंबी सर, एंड नंबी सर टोल्ड मी वन ऑफ द कोट्स फ्रॉम द तिरुकुरल which I will never forget, it's in Tamil, और उसमें उन्होंने कहा था कि your job as a leader of a group is not to know everybody's job. Your job as a leader of the group is to know what has to be done and select the right people. Spend a lot of time selecting the right people to do that job. Right. And once you have selected the right people, do not micromanage them. It's actually there in the Tirukural. Can you believe it? Do not micromanage. Don't sit on them and sing this out. Yes. Let them do. You have trusted them. Trust them completely.